Hello everyone, welcome back. I am Tekchand Deshwal. Welcome to Target IES. Now we have done like circuit elements, charge, current, KVL, KCL, and we also saw some questions. Now we are proceeding towards mesh analysis and nodal analysis. Although I have told you that how with the help of KCL and KVL you can solve any type of question. Just you know to apply. You should know how to calculate the right equations, and the number of equations should be equal to number of unknowns. So nodal and mesh analysis, they provides a easier or simpler way to do the complex problem. So we will also study this. हम छोड़ेंगे नहीं इसे भी. Okay. So mesh analysis. So what is a mesh? A mesh is a subset of loop. Like if there is a loop, like if I say this is a resistance, this is a resistance, this is a current source, now this is back, this is voltage source, here is resistance. So mesh is a subset of loop. Like if I say in this circuit, this is a loop, this is a loop, this is also one loop, and like this is also one loop. So the bigger one is also loop, but mesh is a subset of loop which do not have any inner loop. Like this is a mesh because इसके अंदर कोई और लूप नहीं बन रही, तो ये एक मैश है. ये भी एक मैश है, लेकिन ये आउटर वाला जिसमें दोनों वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स है, ये एक लूप है, लेकिन इसको हम मैश नहीं बोलेंगे क्योंकि इसके अंदर एक और सबसेट है लूप का. तो जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल लूप है जिसके अंदर कोई और लूप एग्जिस्ट नहीं करती, उसको हम बोलेंगे मैश. सो like that we had done earlier in network and circuits. Here also all meshes are loops, but not all loops are mesh. So if it is loops, it is mesh. Okay. Mesh is a loop which does not contain any inner loop. Further, with the help of questions, we will understand this. Okay, now see, mesh analysis is applicable only for the planar network. Planar means which are in two-dimensional form only. If there is a network in three-dimensional form, what you have to do? You have to rearrange the network and bring it in 2D only, so that no wire is crossing over or above any other wire. कोई भी वायर किसी और वायर के ऊपर से जंप करके नहीं जाना चाहिए. Like this, ऐसा नहीं होना चाहिए. Instead, you should construct like this. If there is any circuit like this, you do like this. Make it in a proper 2D fashion. Okay. Okay, so now you will see the procedure of applying the mesh analysis. It's very simple. Identify the total number of meshes, जो हम सर्किट देखते ही पता लग जाएगा हमें. Then assign the mesh current. हर मैश में एक करंट घुमा दो, जो भी मैश तुम्हें दिख रही है उसमें एक करंट घुमा दो, प्लस जो एंटायर सर्किट है उस सर्किट में किसी भी एक बैटरी के अकॉर्डिंग करंट मार्क कर दो. तो उसके बाद क्या है? डेवलप केवीएल इक्वेशंस फॉर ईच मैश. हर मैश में KVL equation लिखनी है and solve the equations. We will take an example, don't worry, and we will solve the question. Number of equations required. This is number of equations required in mesh analysis equals to the number of equations are equals to number of branches minus n minus 1. What is n? N is number of nodes. B क्या है? Number of branches. Okay. Now there's 2 points, only 1 point that you should take care of. The direction of mesh currents can be taken in any direction. हमारी मर्जी है हम mesh current को ऐसे घुमाएं, मीन्स mesh current के अकॉर्डिंग हमें KVL equations लिखनी है. तो mesh current को हम कैसे भी घुमा सकते हैं, but for a simpler analysis and to create a standard, like conventionally we will always take them in clockwise direction. The mesh current is clockwise direction, and then we will see where the drop comes, where isn't, and we will proceed further. Number of equations required. This I have told you already. Okay, now we will see. Okay, so here is the circuit in front of you. सबसे पहला काम आपको क्या करना है? आइडेंटिफाई द मैशेस. मैश क्या है? वो लूप जिसके अंदर कोई और दूसरी लूप एग्जिस्ट नहीं करती. तो आपको एक ये लूप दिख रही होगी, लाइक दिस इज ए मैश, क्योंकि इसके अंदर कोई और लूप नहीं है. सेकंड, दिस इज ऑल्सो ए मैश, इसके अंदर भी कोई और लूप नहीं है. तो हमारी फर्स्ट लूप ये होगी, सेकंड लूप ये होगी. व्हाट इज द सेकंड स्टेप? असाइन द मैश करंट्स, कि इस मैश में कौन सा करंट घूम रहा है.
So we can take it clockwise or anti-clockwise, but for a matter of simplicity we will always take it clockwise. So I1, and what is in this? I2. Okay, now see this branch, this 5 ohm branch, this 5 ohm branch. In this, I1 is going like this, I2 is going like this. This is I1, this is I2. Okay, so in this 5 ohm the two currents are flowing. Now remember one thing that is written also here. When we will be writing the KVL equation in loop 1, so we will consider कि I1 बड़ा है I2 छोटा है, तो नेट करंट कितना फ्लो करेगा? I1 इस नीचे है, I2 ऊपर, तो नेट करंट I1 माइनस I2 डाउनवर्ड्स. जब हम लूप 2 की इक्वेशन लिखेंगे तो करंट I2 कहाँ फ्लो कर रहा है? अपवर्ड्स. तो हम एज्यूम करेंगे कि I2 ग्रेटर देन I1 और करंट फ्लो इज दिस डायरेक्शन. ओके, so now let's write the equation. It's I1, so plus minus 5I1. यहाँ पे I1 ऐसे आ रहा है तो नेट करंट हम ऐसे मानेंगे, जब I1 के लिए लिखेंगे तो प्लस माइनस 5 इंटू I1 माइनस I2. सो KVL फर्स्ट लूप -10 प्लस 5I1 प्लस 5, करंट क्या है? I1 माइनस I2 इक्वल्स टू 0. सो -10 प्लस 10I1 minus 5I2 is equals to 0. Got it? And this is the equation number 1. Or we can simplify this. 2I1 minus I2 is equals to 2. What I have done? I have taken 5 common और इस minus 10 को 0 की साइड ले गया तो plus 10 हुआ. 5 common लिया तो 2I1 minus I2 equals to 2. So this is the equation, simplified equation. Now we will write KVL in second loop. Okay, in second loop what will be dropped here? R into I, that is 10 into I2. So plus का 10 I2. Now when we will going like this in this direction, when we will going like this in this direction, यहाँ से ऊपर की तरफ, तो करंट कितना फ्लो कर रहा है? प्लस R कितना? 5 इंटू I2 माइनस I1. हम जब सेकेंड लूप की इक्वेशन लिख रहे हैं तो उस टाइम पर 5 रेजिस्टेंस हो गया, तो करंट को हमने क्या माना है कि हमने एज्यूम किया I2 ग्रेटर है, तो नीचे से ऊपर करंट जा रहा है तो प्लस यहाँ पे आएगा माइनस यहाँ पे. दैट्स व्हाई प्लस 5I2 माइनस I1. ओके, आई होप इट्स क्लियर. सो इट विल बी 15I2 is equals to 5I1. So I1 equals to 3I2. Okay, now if you put this I1 equals to 3I2 in this equation, so it will be 6I2 minus I2 is equals to 2. So I2 equals to 2 by 5, that is 0.4 ampere. I1 equals to 1.2 ampere. So एक बार और देखते हैं. सबसे पहले काम क्या किया? आइडेंटिफाई किया कि मैसेज कहाँ कहाँ पर हैं. आइडेंटिफाई करो मैश कहाँ है. सेकंड, असाइन द मैश करंट्स. ओके. थर्ड, देन वी फाइंड आउट इस ब्रांच में जो मिडिल में 5 ओम की ब्रांच है, इस ब्रांच में जब हम इस लूप की इक्वेशन लिखेंगे इस मैश की, तो करंट होगा I1 माइनस I2. इस लूप के लिए लिखेंगे तो करंट क्या होगा? I2 माइनस I1. ओके, वी रोट द इक्वेशन, दो इक्वेशन, दो अननोन, एंड वी कैलकुलेटेड द करंट. ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. डेवलप द मैश इक्वेशंस फॉर द बिलो गिवन नेटवर्क. Here a network is given, so first step you have to identify the mesh. Okay, if I say this is a mesh, see the cursor, this is a mesh. No, because इसके अंदर और भी तो mesh अवेलेबल है. mesh क्या है? वो सबसेट लूप का जिसके अंदर कोई और लूप अवेलेबल ना हो. so here there are 3 mesh, 1, 2 and 3. okay, so I am now finding out, like, this is first mesh, second, and this is third. Now the next step is we have to assign the mesh current. So हमने बोला है कि हम कन्वेंशनली सिंप्लिसिटी के लिए हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में असाइन करेंगे I1, I2 and I3. okay, yeah, fine. Now I1, I2, I3. अब हमें क्या लिखना है? KVL इक्वेशंस. इस ब्रांच में करंट कितना है? इस ब्रांच में यहाँ से हम देखें तो I1 यहाँ पे क्या है? I1. ओके, इधर क्या है? इस R2 में I1 इधर जा रहा है, I3 इधर आ रहा है,
तो जब हम I1 मैश की इक्वेशन लिखेंगे तो करंट को एज्यूम करेंगे हम कितना है I1 माइनस I3 इन दिस डायरेक्शन। लेकिन जब हम I3 की इक्वेशन लिखेंगे तो हम एज्यूम करेंगे I3 माइनस I1 और डायरेक्शन क्या होगी उसकी करंट की इस डायरेक्शन में। बस तुम्हें ये पता करना है एंड एवरीथिंग इज सॉर्ट आउट। नाउ सिमिलरली इन दिस मैश इधर करंट कितना आ रहा है I1 डाउनवर्ड, I2 अपवर्ड। तो जब हम I1 की इक्वेशन लिखेंगे तो करंट कितना एज्यूम करेंगे I1 माइनस में I2 डाउनवर्ड। व्हेन वी विल बी राइटिंग फॉर I2 सो I2 माइनस में I1 अपवर्ड्स। ओके, इस मैश में देखेंगे तो I2 इधर है, इस R4 में देखेंगे तो, और I3 इधर है। सिमिलरली जब I2 के लिए लिखेंगे तो I2 माइनस I3 इधर हो जाएगा, और R4 के लिए इधर थर्ड मैश में लिखेंगे तो I3 इधर है टुवर्ड्स लेफ्ट, I2 टुवर्ड्स राइट। सो नेट करंट इज I3 माइनस में I2 टुवर्ड्स लेफ्ट। ओके, इस ब्रांच में तो ओनली I2। ओके, नाउ वी हैव टू राइट द इक्वेशंस। राइट इन फर्स्ट मैश along with I, we will start from here. Entering from minus terminal, that's minus का E1 plus what will be drop in R1. Now I will write directly. Current यहाँ से enter कर रहा था, प्लस आएगा, तो प्लस R1 into I1। अब इस R2 में देखेंगे तो हम नेट करंट क्या है I1 माइनस I3, प्लस किधर आएगा यहाँ पे जहाँ से करंट एंटर कर रहा है, प्लस I1 माइनस का I3 into R2। अब इस R3 एलिमेंट में देखेंगे तो क्या होगा I1 माइनस I2 इंटू R3, और फिर इस बैटरी के हम पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर करेंगे तो प्लस E2 इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, यू कैन ऑल्सो सी हियर। नाउ वी विल राइट फॉर सेकंड मैश। ओके, यू राइट ऑन योर ओन, आई वोंट स्पीक बट यू मैच इट लेटर। Okay, how many of you completed? 5 into I2. You can see, you can match it. Minus I2, so plus minus I2 minus में I1 प्लस यहाँ पे आएगा, माइनस यहाँ पे आएगा जब हम इस डायरेक्शन में I2 की डायरेक्शन में जब हम केवीएल में लिखेंगे। सिमिलरली यहाँ पे प्लस माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस माइनस आएगा। नाउ वी विल राइट इन थर्ड मैश। What will be in third mesh? I3 is flowing, so I will start from this point. Okay, you can start from anywhere, इक्वेशन सेम आएगी, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जहाँ से मैं बोलूँ वहीं से स्टार्ट करना है। तो प्लस I3 इंटू R6 प्लस I3 माइनस I2 इंटू R4 एंड प्लस I3 माइनस I1 इंटू R2 इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इज थर्ड इक्वेशन। Now you can also open it up, then combine I3 terms like I3 bracket R6 plus R4 plus R2 minus I2 into R4 minus I1 into R2 is equals to 0. So this is a simplified form of this equation. So in the same question, I will also tell you one trick now, because you know writing this kind of equation every time and then opening the bracket and then solving, then calculating this simplified form, it takes some time. Okay, focus on the third mesh. In the third mesh you have to focus. Okay, so in third mesh I3 is passing through how many resistance? I3 third mesh, so we are writing equation along I3. So wherever I3 it will be positive. I3 it is passing through R6 plus R4 plus R2। ओके, नाउ जो I3 के रास्ते में जिसमें हमने KVL लिखी है उसमें I2, सी दिस I2, ये I2 इस R4 में रिवर्स डायरेक्शन में था, तो वी विल राइट लाइक माइनस I2 इंटू R4। सिमिलरली यहाँ पे I1, I3 तो इस डायरेक्शन में, यहाँ से लेफ्ट डायरेक्शन में, लेकिन I1 राइट डायरेक्शन में, तो I1 अपोजिट डायरेक्शन में है और I1 फ्लो किस में कर रहा है R2 में, तो हम इसको लिख देंगे माइनस I1 इंटू R2। इन दिस आपका एक स्टेप कम हो जाएगा, एरर होने के चांस कम रहेंगे, बट स्टिल इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल you are not bound to use this, you can check this equation and this equation is same,
Okay, so this is the way to do the questions of mesh analysis. Okay, now let's see one more question of mesh analysis. In the below given circuit, find the value of current I using mesh analysis. Okay, so here is a circuit in front of you. What you have to do, the same steps. पहले तो क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है. Don't think that this is I is given, like this is I current, this is a dependent source, what will happen this question. ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है, बड़े आराम से होगा. पहले आपको आइडेंटिफाई करनी है मैश कितनी है. मैश में सबसे छोटी लूप जिसके अंदर कोई और लूप ना हो. यहाँ पे एक मैश दिख रही है आपको, मुझे भी दिख रही है. सेकंड मैश, दिस इज थर्ड मैश. ओके, नाउ देन वी हैव टू असाइन द मैश करंट्स I1, I2, I3. Okay, now what we have to do now, we have to write the KVL equations. So in the loop 1, if you write in the loop 1, this is minus 5, this is minus का 5 प्लस इस 1 ओम से तो सिर्फ और सिर्फ I1 ही पास कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ I1 पास कर रहा है, तो प्लस I1. अब इस 1 ओम में अगर हम I1 की डायरेक्शन में लिख रहे हैं तो हम क्या एज्यूम करेंगे, करंट क्या है, I1 माइनस I2. हम ये एज्यूम करेंगे कि I1 I2 से बड़ा है, और ड्रॉप ऐसे होगा प्लस माइनस, तो प्लस I1 माइनस I2 into 1 is equals to 0. So this is the equation that you can see on this page. Okay, now in the same way we will also write equation for mesh 2. अगर ऐसे शॉर्टकट से लिखेंगे तो I2 इससे पास कर रहा है 1 2 3 तीन रजिस्टेंस है जो 1 1 ओम पे, जिससे I2 पास कर रहा है, तो 3 I2. यहाँ पे I1 इससे अपोजिट में है तो माइनस I1. यहाँ पे I3 अपोजिट में जा रहा है तो माइनस I3. एंड इसके रास्ते में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, ये एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है. अगर हम I2 की डायरेक्शन में केवीएल लिखेंगे तो हम यहाँ पे पॉजिटिव से एंटर करेंगे ना, तो प्लस 2I इज इक्वल टू 0. यहाँ पे मैंने उसी शॉर्टकट से लिखा है जो मैंने आपको पहले बताया था ग्रीन पेन से, कि सीधे वन स्टेप में कैसे लिख सकते हैं. I2 इससे पास कर रहा है, इससे पास कर रहा है, इससे 3 रजिस्टेंस है जिससे I2 पास कर रहा है, 3I2 प्लस I1 उससे अपोजिट डायरेक्शन में है 1 ओम में, I3 भी अपोजिट डायरेक्शन में है इस 1 ओम में, तो माइनस I1 माइनस I3 प्लस 2I इक्वल्स टू 0. सो दिस इज द सेकंड इक्वेशन. This is your second equation. Okay, now in the third loop or third mesh, we will write the equation the same way. It will be I3 like plus minus I3 minus 2I, because हम I3 की डायरेक्शन में केवीएल लिख रहे हैं, तो हम यहाँ माइनस से एंटर करेंगे, इस पॉइंट से एंटर करेंगे तो माइनस 2I प्लस. अब इस 1 ओम में, जो यहाँ का ये 1 ओम है, इस 1 ओम में कितना करंट पास करेगा, I3 अपवर्ड है, I2 डाउनवर्ड है. हम थर्ड मैश में लिख रहे हैं तो हम क्या एज्यूम करेंगे, I3 माइनस I2 अपवर्ड डायरेक्शन. ओके, रिमेंबर दिस, I3 माइनस I2 इंटू 1 ओम इज इक्वल्स टू 0. ओके, सो I3 प्लस I3 माइनस I2 माइनस 2I इज इक्वल्स टू 0. ओके, दिस इज द थर्ड इक्वेशन. 2I3 I3 plus I3 is 2I3 minus I2 minus 2I equals to 0. Now they have given this I, small I. I think you are able to see this small I. What is this? Small I और I1 की डायरेक्शन सेम है, तो हम क्या लेंगे, I small I is equals to I1 minus I2. इस डायरेक्शन में करंट कितना फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में I1 तो इसी डायरेक्शन में, I2 अपोजिट में, तो I equals to I1 minus I2. So it is our fourth equation. Now you have 4 unknowns, I1, I2, I3 and small I. 4 unknowns, 4 equations. You can use this and you can find the answer. Like you can put this I key value, you place in here and here also. Then you can solve these equations and you can finally find out the answer. Substitute 4 into, if you are not able to do it, follow the solution and you can get the answer. What's I that is asked in the question, that is equal to I3. Okay, now you will see the next.
Before seeing the next question, let me tell you that such type of questions that we have done right now, जो हमने अभी किया था, इसको without mesh analysis करना है तो कैसे कर सकते हैं? Okay, see, this is the same circuit. What you have to do? First, mark the currents. Like if here is current I1, I1 में से I यहाँ गया, so यहाँ पे इस पॉइंट पे KCL लगाएंगे हम. I1 आया था, I1 में से I करंट यहाँ गया, तो यहाँ पे कितना बचा? I1 माइनस स्मॉल i. यहाँ पे कितना है? I1 माइनस स्मॉल i. लेट्स से यहाँ पे करंट गया I2, तो इसमें करंट कितना आया? I1 माइनस I2 माइनस स्मॉल i. यहाँ से I1 माइनस I2 माइनस स्मॉल i. ओके, तो यहाँ पे कितना आएगा? इस पॉइंट में केसीएल लगाएंगे तो यहाँ से कितना आया? I1 माइनस I2 माइनस i, तो टोटल करेंगे तो क्या बचेगा? I1 यहाँ पे घूम रहा है. नाउ वी शुड कंसिडर दीज मैसेज लाइक 1, 2 and 3 and write KVL equations. Write KVL equation in first loop like this. Write -5 plus I1 plus small I into 1, okay, is equals to 0. I hope you have understood it, but still I will explain this only after this. मैं इन दोनों के लिए इक्वेशन लिख दूंगा, आप भी लिख सकते हो, इतना आपको अभी तक आ जाना चाहिए. माइनस हमने यहाँ से माइनस से एंटर किया तो -5, यहाँ पे I1 जा रहा है तो यहाँ पे ड्रॉप क्या होगा? प्लस माइनस I इंटू आर. आई कितना है? I1 इंटू रेजिस्टेंस कितना है? 1. और फिर हम यहाँ से इसमें 1 ओम में कितना करंट फ्लो कर रहा है? I. सो प्लस माइनस I. हमने वही प्लस माइनस I इंटू 1 ओम जो रेजिस्टेंस है, और हम वापस घूम के आगे 5 वोल्ट पर. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ओके, नाउ सेकंड लूप में क्वेश्चन लिखते हैं. हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से लिखना, यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन लिखना. तो प्लस I1 माइनस में I इंटू 1 ओम प्लस, नाउ दिस इज, हम इसमें लिखेंगे, हम सेकंड ब्रांच में लिख रहे हैं, हम इस मैश में लिख रहे हैं, इस मैश में. ओके, सो इस 1 ओम में कितना करंट फ्लो कर रहा है? I2 इंटू 1 प्लस 2i. ये एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, हम इसके पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर कर रहे हैं, प्लस 2i. और इधर से वापस जाएंगे तो यहाँ पे तो I1 करंट तो इधर फ्लो कर रहा है, और हम जाए इस डायरेक्शन में रहे तो I1 की वजह से ड्रॉप तो ऐसे आया माइनस प्लस i, तो हम इसके नेगेटिव से एंटर कर रहे हैं तो माइनस i इज इक्वल टू 0. ओके, सो I1 माइनस i प्लस I2 प्लस i इज इक्वल टू 0. i से i कैंसिल, I1 plus I2 is equals to 0. This is second equation. Now write in third mesh. Third mesh कौन सी है? ये वाली में. अब हमें इसमें इक्वेशन लिखनी है. ओके, सो what we will do now? -2i. मैंने यहाँ से इक्वेशन लिखना स्टार्ट करा है, तो माइनस से एंटर करेंगे तो -2i. अब करंट कहाँ फ्लो कर रहा है? I2 देखो कहाँ फ्लो कर रहा है, इस 1 ओम में I2 नीचे की तरफ, तो ड्रॉप कैसे आएगा? प्लस माइनस I2. लेकिन हम तो इस डायरेक्शन में केवीएल लिख रहे हैं, तो हमने कहाँ से एंटर किया? माइनस से एंटर किया हमने, माइनस I2 इंटू 1. नाउ दिस 1 ओम, इसमें करंट कितना है? I1 माइनस I2 माइनस I. सो प्लस I1 माइनस I2 माइनस में I इंटू 1 ओम इज इक्वल टू 0. सो माइनस का 2i माइनस का I2 प्लस में I1 माइनस का I2 माइनस का I इक्वल टू 0. I1 माइनस 2I2 माइनस का 3i इज इक्वल टू 0. सो ये हमारी थर्ड इक्वेशन आई. ओके, नाउ वी हैव 3 इक्वेशंस, 1, 2, 3, and we have 3 unknowns, I1, I2 and I. So rewriting the first equation, I1 plus I is equals to 5. This is first equation. From second equation I may write I2 is equals to माइनस का I1. नाउ रिप्लेस दिस इन थर्ड इक्वेशन, I1 माइनस 2 इंटू I2. व्हाट इज I2? माइनस का I1 इज इक्वल, माइनस का 3i इज इक्वल टू 0. सो I1 प्लस माइनस प्लस 3i1 इज इक्वल टू 3i. सो I1 इज इक्वल टू स्मॉल i. We have got one more thing, I1 equals to small I. If I replace this 4 in 1, what will happen?
I1 plus what is small I? Small I is equals to I1. I1 plus I1 equals to 5. So I1 is equals to 5 by 2. What is I2? I2 is equals to minus का I1, that is minus का 5 by 2. What is small I? Small I is equals to I1 from equation number 4. So what is small I? Small I is equals to 5 by 2. So now what was asked in the question? क्वेश्चन में हमसे पूछा था ये I क्या है? I is equals to क्वेश्चन मार्क, यानी कि जो थर्ड मैश के फर्स्ट 1 ओम में से जो थर्ड मैश के 1 ओम से पास कर रहा है वो करंट, ये I क्या है? तो ये I क्या था हमारा? ये I था हमारा I1 माइनस I2 माइनस का I. तो क्या होगा? I1 क्या है? 5 by 2 माइनस ऑफ I2 क्या है? माइनस का 5 by 2 माइनस I क्या है? 5 by 2. तो माइनस माइनस प्लस, माइनस 5 by 2 प्लस 5 by 2 कैंसिल. Answer is plus 5 by 2 amperes. You can match the answer using both the methods like mesh or either by using only KCL and KVL. I always do questions by KCL and KVL. That's my choice. But as I have teach you both the methods, so you can do whatever suits best for you. Okay. Now we will see the next question. Okay. Now we see the second model. In this model, in one mesh the current is already given. Okay, like this is the circuit. So first, what's the first step? You have to identify the mesh. This is first, this is second. I am seeing here 3 mesh only. Okay, mesh is a loop which do not have any inner loop. इस loop के अंदर कोई भी inner loop नहीं है. Similarly for second and third. Then I have assigned mesh currents I1, I2 and I3. Now it's time to write the equations. For first mesh we will write in the direction of I1 minus 2 plus 2I1 plus this 1 ohm के अंदर से करंट कितना पास करेगा? I1 minus I3 plus जो ये 1 ohm है इसके अंदर से कितना करंट पास करेगा? I1 minus I2 into 1 is equals to 0. So equation क्या आएगी? 4I1 minus I2 minus I3 is equals to 2. So this is first equation. For the second mesh we will write, okay, let's start from this point. Okay, I2 की डायरेक्शन में लिखेंगे हम, तो करंट क्या जाएगा? 1 into I2 minus I1. हम क्योंकि I2 मैश में लिख रहे हैं, I2 minus I1. Now for this 1 ohm like this plus I2 minus I3. हम एज्यूम करेंगे कि I2 ही बड़ा है, I2 की डायरेक्शन में करंट चल रहा है, प्लस इस 1 ओम से तो सिर्फ और सिर्फ I2 पास कर रहा है, तो प्लस I2 इक्वल्स टू 0. सो 1 2 3 I2 माइनस I1 एंड माइनस I3 इज इक्वल्स टू 0. सेकेंड इक्वेशन. नाउ कम्स फॉर थर्ड लूप. You know why we are writing these equations? To find out the current. लेकिन जो थर्ड मैश है उसमें तो इसने हमें करंट ऑलरेडी बता दिया कि I3 इक्वल्स टू 2 एम्पियर है. So there is no need to write the equation in third mesh. I3 equals to 2 ampere directly. इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करो, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट डाउन करो, then rewrite the equations and there will be 2 equations, 2 solutions like I3 equals to 2 ampere. Put in the equation and you will find the answer easily. If you want, I can also solve it for you. Put I3 equals to 2 ampere in first equation. It will be 4I1 minus I2 is equals to 4. This is third equation. Put I3 equals to 2 ampere in this equation, in the second equation. So it will be minus I1 plus 3I2 is equals to 2. This is fourth equation. You can solve these equations and you can find the answer. Okay, now in the next question, you must have heard about super mesh. What is super mesh? एक तो mesh है, super mesh तो means mesh से कुछ अच्छा कुछ बड़ा होगा, वो होगा super mesh. Okay, what's a super mesh? We will see in this example only. First step, we have to identify the mesh. This is one mesh. This is second. I have to assign the currents. I1. This is I2. Okay, any problem? No. But see, इन दो मैश के बीच में जो ब्रांच है उसमें एक करंट सोर्स है. मैश नंबर 1, मैश नंबर 2, इन दोनों मैश के बीच में जो ब्रांच है
उसमें एक करंट सोर्स है, मीन्स वी ऑलरेडी हैव गॉट I2 minus I1 इक्वल टू 2 एम्पियर, बिकॉज 2 एम्पियर की डायरेक्शन किससे मैच करती है, I2 से मैच करती है, 2 एम्पियर की डायरेक्शन I2 से मैच करती है, इसलिए I2 minus I1 इक्वल टू 2 एम्पियर. So this kind of mesh, in this kind of circuit, the mesh that is formed by like this, from -4 1 ohm like this, 1 ohm like this, this is called super mesh. So you don't have to write separately two equations कि mesh 1 के लिए अलग इक्वेशन, mesh 2 के लिए अलग इक्वेशन, आपको ऐसे नहीं लिखनी है, सीधा एक ही इक्वेशन, वो भी सबसे आउटर वाली इसमें मैश में, इसको बोलते हैं फिर हम सुपर मैश, क्योंकि इनके बीच में एक करंट सोर्स आ गया है. सो इफ वी राइट द इक्वेशन सुपर मैश, व्हाट विल -4 प्लस I1 प्लस I2 प्लस 2 वोल्ट इज इक्वल टू 0, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 2, I2 minus I1 is equals to 2 एम्पियर, I1 कैंसिल, 2I2 इक्वल टू 4, I2 इक्वल टू 2 एम्पियर, और ये I2 क्या है, सेकंड, यही करंट हमसे पूछा गया है, तो उसकी वैल्यू क्या आई, 2 एम्पियर्स. ओके, नाउ आई विल टेल यू वन मोर थिंग. ओके, दिस इज दैट सेम क्वेश्चन ऑफ सुपर मैश. I will tell you one different method, because many times what happens in the complex circuits, it is hard to identify a super mesh. Okay, if the question clearly says that solve this by super mesh in mains or conventional, then you can do that. But in the circuits, when there is a complex circuit, तो वहाँ पे सुपर मैश को आइडेंटिफाई करना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है. तो मैंने आपको दोनों मेथड बताए, मैश में भी सुपर मैश और केसीएल केवीएल को यूज करके भी, लाइक सेकंड मॉडल भी था, या फिर 4 इक्वेशन बना के, इनकी हर क्वेश्चन को केसीएल और केवीएल से सॉल्व किया जा सकता है. तो मैं इसमें भी आपको वही करके दिखाता हूँ. यहाँ से कितना करंट आया, I1, यहाँ से कितना आया 2 एम्पियर्स, यहाँ पे केसीएल लगा दो, यहाँ पे कितना आया 2 प्लस I1. ओके, तो एक केवीएल इस लूप में लिख दो, क्या केवीएल आएगी, -4 प्लस I1 प्लस 2 प्लस I1 इंटू 1 प्लस 2 वोल्ट इज इक्वल टू 0. सो 2I1 -4 प्लस 2 plus 2 is equals to 0. So 2I1, this will cancel out, equals to 0. So what is I1? It is 0. So यहाँ से करंट कितना आया 0 एम्पियर, यहाँ से कितना आया 2 एम्पियर्स, इधर कितना आया 2 प्लस 0 इक्वल्स टू 2 एम्पियर. पूछा क्या था, इसी वन से करंट पूछा था. सो I इक्वल्स टू 2 एम्पियर आंसर. ये और भी जल्दी आंसर देता है. सो ऑलवेज बैंक अपॉन KCL एंड KVL, बट you can also do by mesh and nodal. Whatever you think is easy, you can use that method only. Okay, now we will see nodal analysis. Now after mesh analysis, we will go for nodal analysis. Mesh analysis generally voltage और KVL को यूज करके काम करती है, और nodal analysis vice versa, that is KCL. Okay, so procedure for applying the nodal analysis, there are some. Okay, what is the simple procedure? Identify the total number of nodes. Nodes देखना है, nodes कहाँ पे होते हैं, जहाँ पर two or more than 2 branches meet together, जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा branches मिलती हैं, तो वहाँ पे होते हैं nodes. उसको हम क्या बोलते हैं, principal nodes, जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा branches हों. Assign the voltage at each node. One of the node is taken as the reference node और डेटम नोड, और इसको हम हमेशा ग्राउंड करके रखेंगे फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी. हम 5 वोल्ट पे भी रख सकते हैं, 10 वोल्ट पे भी रख सकते हैं, 20 वोल्ट पे भी, बट इट्स पोटेंशियल शुड बी इक्वल टू द ग्राउंड पोटेंशियल सिंप्लिसिटी के लिए. देन डेवलप KCL इक्वेशंस फॉर ईच नॉन रेफरेंस नोड. बाय सॉल्विंग KCL इक्वेशंस फाइंड द नोड वोल्टेज, यानी कि जितने नोड वोल्टेजेस होंगी उतनी ही इक्वेशंस बनेंगी, और उन इक्वेशंस की हेल्प से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. फर्स्ट, बी केयरफुल, इट कैन बी अप्लाइड for both planar and non-planar. For 3D networks also it can be applied. And what are the total number of equations required is number of nodes minus 1. And what was the total number of equations required in mesh analysis? That was equals to number of branches minus number of nodes minus 1. Okay, we will see again some mesh example where we can count the number of equations. So you remember we solved this question, और इस क्वेश्चन में हमने कितनी इक्वेशन बनाई थी,
तीन इक्वेशन, क्योंकि तीन अननोन थे। अगर हम फॉर्मूले के हिसाब से देखा जाए तो नंबर ऑफ इक्वेशन इक्वल्स टू नंबर ऑफ ब्रांचेस माइनस नंबर ऑफ प्रिंसिपल नोड्स माइनस 1। तो ब्रांचेस कितनी है यहाँ पे, R6 एक ब्रांच है, R4 एक ब्रांच है, R2 एक ब्रांच है, R1 और E1 दोनों में सेम करंट पास कर रहा है तो ये भी एक ब्रांच है, E2 R3 भी एक ब्रांच है, R5 भी एक ब्रांच है। तो 1 2 3 4 5 6 दे आर टोटल 6 branches minus how many principal nodes? Principal nodes are where more than 2 elements are connected together. So जहाँ पे I1 आ रहा है ये नोड, यहाँ पे R1 E1 R2 R6 तीन ब्रांच कनेक्टेड, तो ये एक प्रिंसिपल नोड है। सिमिलरली ये एक प्रिंसिपल नोड है जहाँ पे R3 R4 R2 कनेक्टेड है, और ये एक प्रिंसिपल नोड है R6 R4 R5, और एक ये बॉटम वाला, यहाँ पे भी तो तीन ब्रांच, एक 1 ब्रांच 2 ब्रांच 3 ब्रांच, यहाँ पे तीन ब्रांच कनेक्टेड है। So there are 4 principal nodes. So 4 minus 1, that is 6 minus 3 is equals to 3 equations are required. Suppose if like in the next question where there was current was given 3 amperes in one branch, in that case the number of equations is reduced by 1 because we get directly the value of I3. So no need to write the equation for this. So here we got only 2 equations. Similarly in super mesh also, like if we don't consider the, like this is a super mesh, so one branch, this is one branch, this is second branch, third branch, so 3 minus how many principal nodes, this is one node, यहाँ पे तीन कनेक्शन है, ये भी एक प्रिंसिपल नोड है, सो दो प्रिंसिपल नोड माइनस 1, तो कितनी इक्वेशन बनेगी 2। लेकिन ये क्या था सुपर मैश, यानी कि इसमें एक ब्रांच में करंट हमें ऑलरेडी पता था, तो एक इक्वेशन उसकी वजह से कम होगी। हाउ मेनी इक्वेशंस डिड वी रॉट, वी राइट ओनली वन इक्वेशन। ओके, सिमिलरली नोडल में भी नंबर ऑफ इक्वेशंस क्या होती हैं, नंबर ऑफ प्रिंसिपल नोड्स माइनस 1। ओके, अब हम एक एग्जांपल देखेंगे। ओके, नाउ बिफोर स्टार्टिंग क्वेश्चंस और नोडल एनालिसिस आई वांट टू सी दिस हैंड ऑन कॉन्सेप्ट्स। ये मैंने आपको पहले भी बताया है, लाइक इफ दिस इज 5 वोल्ट ड्रॉप across a resistance, this is VB. So if this is 5 volt, if suppose there is a resistance and there is a drop of 5 volt, if here is plus, this means current is flowing like this. So this point will be on higher potential, this point will be on lower potential because यहाँ पे negative है. So if this is VB, what will be VA? VA will be VB plus 5 volts. Okay, if this is 3 volt, so 3 plus 5 8 volts, minus 1 plus 5 4 volts, minus का 9 plus 5 minus का 4 volts. So you should know this. And if like it is like this, plus minus 5 volt, it is given like 1 volt. So what will be this? 1 minus 5, then this will be minus का 4 volt. You should be very quick in these calculations. These very small calculations. आपको ये पता होना चाहिए कि किस पोलैरिटी में वोल्टेज बढ़ेगी, किस पोलैरिटी में वोल्टेज घटेगी। इफ माइनस 9, सो माइनस प्लस, दैट मीन्स इट इज रेजिंग द पोटेंशियल। सो यहाँ का पोटेंशियल इससे 5 वोल्ट ज़्यादा आएगा। सो फर्स्ट पॉइंट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस, डोंट रिमेंबर, जस्ट रिमेंबर द लॉजिक और कॉन्सेप्ट। सेकेंड, इफ हियर इज वी एक्स potential, here is Vy, this is R ohm. If I say that this is Ixy, so what will be the current Ixy? Ixy is equals to difference in potential or potential difference across this resistance. There's Ohm's law also says that. So what is the potential difference? Vx minus Vy upon R, this is ampere. Or suppose if I say this is Ixy, so what is Ixy? Sorry, it is Iyx. It will be Iyx from y towards x. So Iyx is equals to Vy minus Vx by R amperes. Okay. पोटेंशियल डिफरेंस जिस डायरेक्शन में हम देख रहे हैं Vy माइनस Vx, अगर हम Ixy निकाल रहे हैं तो Vx माइनस Vy by R. Okay. Now if I say this is Ixy, what will be this? So Ixy is equals to, पहले तो हमें देखना है Vx माइनस Vy, यहाँ पे Vx है, यहाँ पे Vy है, Vx माइनस में Vy. नाउ सी, जो ये एक्स्ट्रा पोटेंशियल डिफरेंस, ये एक सोर्स लगा हुआ है, ये क्या चाहेगा, अपना इसका प्लस इधर है तो ये चाहेगा कि मैं करंट को
इधर ड्राइव करूं, सो ये आई एक्स वाई को अपोज कर रहा है कि सपोर्ट? ये अपोज कर रहा है, क्योंकि आई एक्स वाई तो इस डायरेक्शन में है, ये ई चाहता है कि मैं इस डायरेक्शन में करंट को फ्लो कराऊं, तो इसलिए इसमें आएगा माइनस का ई अपॉन आर. नाउ इफ वी ट्राई टू फाइंड आउट लाइक आई वाई एक्स, सो आई वाई एक्स क्या आएगा? वी वाई माइनस वी एक्स. अब यहाँ पे इस कंडीशन में अगर हम आई वाई एक्स निकाल रहे हैं, वाई एक्स इधर जा रहा है, तो बैटरी भी चाहती है कि इधर करंट जाए, बैटरी भी चाहती है कि पॉजिटिव टर्मिनल से करंट इधर निकल के जाए, तो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ये इसको सपोर्ट कर रहा है, तो प्लस ई अपॉन आर. नाउ डू दिस लाइक आई एक्स वाई. यहाँ पे आई एक्स वाई क्या होगा? वी एक्स माइनस वी वाई. ये तो होना ही है वी एक्स माइनस वी वाई. बैटरी सपोर्ट कर रही है कि अपोज? आई एक्स वाई को सपोर्ट, प्लस ई अपॉन आर like this. Okay, now see one more thing. In this, if this is given like this, minus का 5 volt, so first you do one thing, you rearrange this. This is Vy, this is Vx. इस माइनस साइन को इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, प्लस माइनस दैट इज 5 वोल्ट. और अब आप इक्वेशन लिख सकते हैं आई एक्स वाई विल बी Vx माइनस Vy माइनस का 5 वोल्ट बाई आर एम्पियर्स. ओके, so these things are necessary in nodal analysis. I want you to revise this once more, and then we will proceed to the numericals on nodal analysis. Okay, this is the first question. Let's start the first question. What is the first step? Identify the total number of nodes. Nodes कहाँ है? नोड्स कौन सा आइडेंटिफाई करने हैं? जो भी प्रिंसिपल नोड्स हैं. ये तो प्रिंसिपल नोड नहीं है, ये तो पूरी एक ब्रांच है, यहाँ से लेके यहाँ तक तो एक ब्रांच से सेम करंट फ्लो कर रहा है. प्रिंसिपल नोड्स कहाँ है? यहाँ पे, जहाँ पे 1 2 3, मोर देन 2, जहाँ पे मोर देन 2 ब्रांचेस आर मीटिंग, दैट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल नोड. सो दिस इज वन नोड, दिस इज वन मोर नोड. तो नोड कितने हुए? 2. नंबर ऑफ इक्वेशंस विल बी नंबर ऑफ प्रिंसिपल नोड्स माइनस 1, 2 minus 1 is equals to 1. तो इक्वेशंस कितनी बनेंगी? 1. Okay, now we have to take one node as a reference or a datum node. So generally this node where the negative terminal of battery is connected, generally we take this as a reference or datum node, and this is grounded, means it is kept at 0 volt, and we will say this potential is Vx volts. Okay, now apply nodal at Vx. Actually what is nodal? Nodal is nothing but KCL. अगर हम at node Vx पे KCL लगाएं, and suppose we say like this is I1, I2, I3, तो I1 plus I2 plus I3 is equal to 0, क्योंकि सारे आउट गोइंग है, इनकमिंग तो कोई है ही नहीं. मैंने सबका एरो किधर लिया? देखो, मैंने सबका एरो लिया आउटवर्ड्स. I1 बाहर जा रहा है, I2 बाहर जा रहा है, और I3 भी बाहर जा रहा है. तो I1 plus I2 plus I3 is equals to 0. Now see what is I1. What is I1? जो मैंने अभी आपको एक डेमो दिया था यहाँ पर, इसमें I1 कैसे निकालते हैं? अगर यहाँ पे Vx है, यहाँ पे Vy है, एक बैटरी है, तो कैसे निकालना है? Vx माइनस Vy. बैटरी अपोज कर रही है कि सपोर्ट कर रही है, ये देखना है, एंड देन डिवाइड बाई रेजिस्टेंस. सो सिमिलरली व्हाट इज I1? Vx. यहाँ पे Vy कितना है? Vy तो ग्राउंड मान लिया हमने, रेफरेंस डेटम नोड 0 माइनस 0. नाउ ये 10 वोल्ट की बैटरी अपोज कर रही है I1 को या सपोर्ट कर रही है? 10 वोल्ट की बैटरी का प्लस टर्मिनल ऊपर है, तो ये चाहेगी करंट इधर जाए, तो ये अपोज कर रही है I1 को, तो माइनस का 10 डिवाइड बाई 5. प्लस में व्हाट विल बी I2? I2 will be Vx by 5. What will be I3? Vx by 10 is equals to 0. So Vx minus 10 by 5 plus में Vx by 5 plus में Vx by 10 equals to 0. Multiply by 10. 2Vx minus 20 plus 2Vx plus में Vx equals to 0. 5Vx equals to 20 and Vx equals to 4 volts. We have got the Vx. तो क्वेश्चन में क्या पूछा था? फाइंड द करंट I करंट कौन सा है? ये वाला. हमारे पास Vx आ गया. Vx इज 4 वोल्ट्स, तो I क्या होगा? 4 by
10, एक्चुअली 4 volts, this is 0, तो 4 minus 0 by 10 कितना आएगा 0.4 एम्पियर एंड दिस इज द आंसर. सो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ नोडल ओवर मैश? हम नोडल को क्यों यूज करते हैं? बिकॉज इट रिक्वायर्स लेस नंबर ऑफ इक्वेशंस. अगर इसी को हम मैश एनालिसिस से करते तो एक मैश हमारी यहाँ बनती, एक मैश हमारी यहाँ बनती एंड वी हैड टू राइट 2 इक्वेशंस. लेकिन नोडल में सिर्फ एक इक्वेशन से क्वेश्चन सॉल्व हो गया. सो नोडल इज इजी. कभी भी आपको इक्वेशन सॉल्व करनी हो एग्जाम में, ऑलवेज यूज नोडल एनालिसिस इफ इट्स पॉसिबल. लेकिन कुछ क्वेश्चंस होते हैं पर्टिकुलरली जिन्हें मैश से ही करना है तो आप उन्हें कर सकते हैं. अदरवाइज KCL एंड KVL दे आर ऑल्सो गुड. ओके, सो नाउ वी एंड दिस लेक्चर. In the next lecture, we will do some more questions on nodal analysis and then we will see some previous year questions. Thank you.